हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस में आपको पता है कि हम डेली जो द हिंदू एनालिसिस करते हैं, इसमें हम लोग यूपीएससी का करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट्स को कवर करते हैं। और हमारी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड होती है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस दोनों के ओरिएंटेड होती है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं दैट वी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एनी टॉपिक, व्हाट वी डू हियर इज वी विल स्टार्ट द डिस्कशन एंड वी विल टेक आउट द पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेपरेटली। तो इसीलिए अगर आपको हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ना है तो ये आपको नंबर है, इस नंबर पे आप एक मैसेज कीजिए। आपको एक तो सुबह ये व्हाट टू रीड इन द हिंदू, ये जो न्यूज़ का समरी होता है कि कौन कौन सा न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम इन न्यूज़ में किसी जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनका हम बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद ये वीडियो आता है और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और व्हाट्सएप टेलीग्राम या हमारे जो चैनल्स है ऑफिशियल चैनल्स है उस पे आपको ये जो पीपीटी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली टारगेट्स, हर एक चीज आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे जुड़ के पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो फॉर doing the wonderful and amazing thing that is landing the Chandrayaan 3 successfully on the southern side of the moon, South Pole के पास। And by this India has joined the highest prestigious like group of countries जो इस मून की एक्सप्लोरेशन में the only few countries, that is Russia, USA and China, which have this tag of landing softly on the moon. India has joined this group and now India's success और चंद्रयान के बाद what are the future prospects of India and what are the future prospects of this success are deeply dealt in the editorials ahead. And in such a case this success belongs to humanity as has been the goal of India। और G20 का भी गोल हमारा यही है, G20 का मोटो हमारा यही है, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो everything which we receive in the form of information, we receive in the form of research, we receive in the form of data from the rover and the lander, so we will share it and it will be beneficial for the humanity in the longer run. And the rover will do chemical analysis and this rover will be there for on the lunar surface for next 14 days। ठीक है, so kudos to all of us, ठीक है, for doing this and kudos to this ISRO। एंड नाउ द थिंग इज कि अब चंद्रयान 3 के बाद क्या करना है, तो दिस वाज डिस्कस्ड डीपली इन दिस एडिटोरियल ऑफ टुडे। एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ space missions, what is the future of India's space perspective after Chandrayaan. So after a successful landing of Chandrayaan, what we have seen is the what we have seen is that how what this editorial talks about is how this mission will now be more successful and how will ISRO navigate further in its future. That is, it talks about the first immediate application of Chandrayaan 3 lander will be that ISRO is now sitting on the moon, and this took away the right lesson from the failure of preceding mission that was Chandrayaan 2. That is, ki failure is not all. Whatever whatever we do, we proceed, we have that grit and resilience in doing things and in aspiring for future and in improvisation, that is the only thing which keeps humanity going on। ठीक है, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है, कि एक फेलियर के बाद यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड नॉट क्विट, यू शुड
continuously improvise yourself, you should work on things and you should fill the loopholes, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल सकती है. Now here is the point, that is now Chandrayaan 3 के बाद we sit at an important juncture. And what is this juncture about? और क्या है ये juncture? That is India is now a member of Artemis Accord. And what is Artemis Accord? Artemis Accord is a collaboration of around more than 27 countries, and India have become 27th country to join the Artemis Accords. And these Artemis Accords, these are non-binding in nature. Artemis Accord is non-binding in nature. And this Artemis Accord, what is this about? ये जो Artemis Accord है, this Artemis Accord was established by United States. This was established by US State Department and NASA and other 7 founding members. And India is not a founding member as it's the 27th country to join. So who are the 7 founding members of Artemis Accord? One is Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, UAE and UK. ठीक है, चलो इसी बहाने आपके शॉर्ट फॉर्म्स भी हो गए इन कंट्रीज के, है ना, वरना इसकी मैं अलग से वीडियो बनाता. और नाउ द थिंग इज, what is this Artemis Accord based on? It's actually based on the Outer Space Treaty of 1967. So the Outer Space Treaty, what is it actually? It's actually a multilateral pact under United Nations which serves as a foundation for international space law. ठीक है, और अब आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर क्या कमिटमेंट्स है और हमें करना क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर? वी नीड टू डू स्पेस एक्सप्लोरेशन, देन एमओयूज साइन होंगे फॉर पीसफुल पर्पसेस, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन. ठीक है, देन वी विल ऑल्सो सी रजिस्ट्रेशन एंड डेटा शेयरिंग अंडर दी आर्टेमिस अकॉर्ड. ठीक है, तो आर्टेमिस 1 was a unmanned mission जिसमें स्पेसक्राफ्ट वाज ओरियन on space launch system from NASA which was launched in 2022. ठीक है, और दूसरा आर्टेमिस 2 is a flyby mission which is scheduled for 2024. ठीक है, तो आर्टेमिस 2 देखिए, आपको ये समझना होगा that how much deep analysis we do of the topics which we take in this discussion. Artemis 2 is scheduled for 2024 and it will mark first crewed mission. इसमें साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे. कितने एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे? 4 एस्ट्रोनॉट्स. 4 एस्ट्रोनॉट्स विल फ्लाई बाय. दे विल, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सारे मिशंस, फ्लाई बाय, लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल, हर एक चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कितने टाइप्स के मिशंस होते हैं. ह्यूमन विल रिटर्न टू मून इन आर्टेमिस 3. ठीक है, आर्टेमिस 3 इज शेड्यूल फॉर 2025 एंड इसमें क्या होगा? ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन. ठीक है, एंड दिस विल एस्टैब्लिश अ ल्यूनर गेटवे स्टेशन which is planned for 2029. तो this is how India is now proceeding further. किस चीज पे? This with moon exploration. Or India is now at the Artemis Accord, and this is a US-led multilateral effort for placing humans on moon by 2025.
और 2025 में जो होगा आर्टेमिस थर्ड होगा। ठीक है। while Russia and India were not racing to well not racing to moon, जैसा एक मिसकॉन्सेप्शन था और बहुत ही ज्यादा ये चीज चली थी अभी कुछ दिन पहले, दैट ल्यूना बाद में गया, चंद्रयान 3 पहले गया, बट फिर भी ल्यूना पहले पहुंचने वाला है, फिर ल्यूना का क्रैश हो गया। ठीक है, ल्यूना 25। और कल के सेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कल के सेशन में और परसों के सेशन में, दैट व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स जो ल्यूना 25 को फेस करनी पड़ी थी, और व्हाट आर द की पॉइंट्स जो ल्यूना 25 में यूनिक थे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई, वो जल्दी पहुंच गया मून पे। ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिवाइज। Second is what India should further prosper for, what India should further move ahead for. First is International Lunar Research Station, जो ILRS है, this research station which is a planned like program with China and Russia, and this works on a parallel access to Artemis Accord. Well, India is a part of Artemis Accord. ठीक है, इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट है, वेल एज ILRS इज वर्किंग पैरेलल टू दिस आर्टेमिस अकॉर्ड। तो ये चीज याद रखनी है दैट ILRS इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया। ठीक है, देन व्हाट इज further which we can do, that is planning and implementation of scientific missions, conducting stellar science, and better space scientific instruments should be there। और ये space instruments in which India is already developing missions like Astrosat, which is a notable exception, as the forthcoming Aditya L1 and Exposat and Nisar missions are expected to be। ठीक है, तो ये मिशंस आगे आने वाले हैं। एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट इज you can say it's a first multi-wavelength space observatory which is a dedicated mission of ISRO on astronomy, and the mission का जो objective है is to observe celestial sources simultaneously with X-ray, optical and UV जो रेज होती, जो स्पेक्ट्रम होता है ऑप्टिकल एंड यूवी रेज का स्पेक्ट्रम, उसमें एस्ट्रोसैट जो है ऑब्जर्व करेगा किसको? पूरे स्पेस को, and the celestial bodies. So better science results demand more investment in research, and that is the point जो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं, that we should invest more in research। और रिसर्च पे ही अगर आपको याद हो तो NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड, और NRF बिल आया हुआ था पार्लियामेंट में अभी पिछले सेशन में। And the second thing is that the third phase of collaboration will begin. The landing also brings to close the second phase of the India's lunar exploration program, and third phase, that is a collaboration of ISRO and JAXA for lunar polar exploration mission, which is LUPEX mission। और ये LUPEX mission क्या है? This LUPEX mission is a joint robotic lunar mission। ठीक है, दिस इज a joint robotic lunar mission of India, Indian Space Research Organization ISRO and JAXA। The mission aims to send a lunar rover and lander to explore the southern pole of moon by 2024। ठीक है, तो दीज आर अपकमिंग मिशंस। हाउएवर यहाँ पे ऑथर ने एक चीज पॉइंट आउट की है, दैट इज कि चंद्रयान 2 में एक ऐसा इक्विपमेंट था, एक ऐसा गियर था जो रशिया को डिलीवर करना था इंडिया को, बट ड्यू टू द फेलियर ऑफ फोबोस ग्रंट मिशन ऑफ 2011, रशिया का जो मिशन था वो फेल हो गया, तो उसकी वजह से रशिया हमें वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। दिस ल्यूपेक्स मिशन, दिस विल सी a growth in the study of water ice on the moon's south pole। ठीक है, now what we should consider as a way forward for space exploration or the lunar exploration is particularly the private sector contributions should increase, and more innovation is required in this sector। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाला एडिटोरियल। So the one more editorial which came here was about the social security. This is today's lead editorial, and it's written by a member of parliament from the ruling party। और ये जो editorial है, this talks about
सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड दिस टॉक्स अबाउट द सोशल सिक्योरिटी नेट विच शुड बी फॉर एवरीवन, ठीक है। और ऑन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स the author here highlights that we may strengthen the employees provident fund, we may strengthen employees state insurance scheme, and we may also strengthen the national social assistance program with budgetary support and expansion of coverage। और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, और सोशल जो प्रोटेक्शन है उसको इंक्रीज क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑथर हियर हाईलाइट्स दैट सोशल प्रोटेक्शन जो है ना, जो सोशल प्रोटेक्शन है ये या सोशल सिक्योरिटी है, if you see here that providing social protection to the poorest 20% of the workforce would only cost us around 0.69% of the GDP in financial year 20, है ना। तो that is why step forward was taken by the government in such scenario, that was the code on social security 2020, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर also highlights that the push which government has been taking through e-shram portal for the digitalization of the records of workers, ठीक है। और ये सब चीजें हैं जो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर एंड अबाउट द सोशल सिक्योरिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे रिवाइज करने चाहिए अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर एंड सोशल सिक्योरिटी। फर्स्ट इज द बीपी Adarkar Committee. This committee was there set up in 1943, and this committee submitted its report in 1944, and this committee was tasked with preparing details of compulsory insurance for industrial workers, ठीक है। और this committee considered the ILO experts, and then we modified the other committee's report, and at last we prepared what, we prepared first social security scheme of India in 1944 इस कमिटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। और उसके बाद 1944 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनैक्टेड द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, और उसके बाद हमने इसी एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी सेटअप की। साथ में ही हमने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952 लेके आए। दिस एक्ट वाज इनैक्टेड, और उसके बाद ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। देन सम व्हाट लेटर वी also somewhat earlier before this, the workmen's compensation Act of 1923 was also enacted, and later we also enacted Maternity Benefit Act of 1961, ठीक है। और इसके बाद there is also Payment and Gratuity Act of 1972, done। And then what are the key social security schemes in India? और अगर आपको ये याद रखनी है की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, तो दीज आर पर्टिकुलरली, आपको ये स्कीम्स याद रहनी चाहिए। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको नाम बता दूंगा, यू शुड लुक फॉर दीज स्कीम्स एंड यू शुड सर्च अबाउट दीज स्कीम्स। एंड फर्स्ट इज, और जो हमारा स्कीम्स का वीडियो आएगा, अटल पेंशन योजना, जिसमें हम ये सारी स्कीम्स को एक एक करके इनके जो प्रोविजंस है, इनके जो बेनिफिट्स है उस सब के साथ डिस्कस करेंगे। अटल पेंशन योजना provides fixed pension of 1000 to 5000 rupees after the age of 60 years, and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, and there is Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, there is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, there is Pradhan Mantri or PM Kisan मान धन योजना, ठीक है। एंड देयर इज प्रधानमंत्री लघु
व्यापारी मानधन योजना which are launched till date for social security benefits of Indian workforce and Indian labor force. ठीक है, whether it's in the social, whether it's in the formal sector or informal sector. चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला एडिटोरियल हमारा हो गया। एंड नाउ द थर्ड एडिटोरियल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, इसके बारे में, इस एडिटोरियल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। और ये एडिटोरियल इज अबाउट भारत एनसीएपी, दैट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट ने। एंड कल ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये लॉन्च किया था। और ये वाला न्यूज़ जो है हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के ऊपर वी डिस्कस्ड सम पॉइंट्स, दैट इज दी 5 स्टार रेटिंग्स जो ये ऑटोमोबाइल्स को देगी। देर आर 3 पैरामीटर्स ऑफ अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी assistant technology which will be assessed in every car so that the car crashes will decrease। और कार क्रैशेस डिक्रीज क्यों करने हैं हमें? बिकॉज इंडिया में जो व्हीकल्स है, जितनी गाड़ियां हमारे पास है, टोटल वर्ल्ड में जितनी गाड़ियां हैं उसका जस्ट 1% इंडिया में है। और इंडिया में जो रोड फैटिलिटीज होती है, रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स होते हैं, दैट इज 11% ऑफ द टोटल फैटिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को भी समझना है, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम BCNAP। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने अभी अभी निकाला है विच इज अ 5 स्टार रेटिंग सिस्टम। और मैंने बोला है आपको दैट 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन एक पूछ चुका है इसी सेम चीज पे, विच इज द 5 स्टार रेटिंग सिस्टम विच इज देयर। अगर आपको दिखता होगा, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे वो एसी हो, फैन हो, वो रेफ्रिजरेटर हो, उसमें 5 स्टार रेटिंग लगी होगी। एंड सेम 5 स्टार रेटिंग विल बी देयर नाउ ऑन द कार्स। और ये 5 स्टार रेटिंग किस बेसिस पे होगी? ये होगी कि कार में सेफ्टी कितनी है, कार कितनी सेफ है आपके लिए ड्राइव करना। और ये चीज लागू होगी थ्रू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197, जो जल्द ही पब्लिश होने वाला है। और ये पब्लिश कौन करेगा? सेम मिनिस्ट्री। दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिस पे ये चेक किया जाएगा दैट वेदर द कार इज सेफ और नॉट। एंड देन एनसीएपी क्यों करना है? बिकॉज देखो, जितनी पॉइंट्स हमने कल वाली न्यूज में डिस्कस की थी, सेम पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं इस एडिटोरियल में। ठीक है, और 1.5 लाख रोड फैटेलिटीज होती है टोटल, विच इज अराउंड 10% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू रोड फैटेलिटीज। एंड इंडिया का जो है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, इट्स जस्ट 1% ऑफ द टोटल व्हीकल्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड इफ यू सी दैट रोड क्रैशेस से जो इंडिया के जीडीपी पे नुकसान होता है, दैट इज 5 to 7% ऑफ द जीडीपी इन टोटल ईयर। और इसी के बेसिस पे हाउ हैज भारत एनसीएपी इवॉल्व, भारत एनसीएपी इवॉल्व कैसे हुआ है, सेम चीज हमने कल भी डिस्कस की थी। और ये कल वाली न्यूज में भी आया था दैट ग्लोबल एनसीएपी विच वाज फॉर्म्ड बाय यूके बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। और ये टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन क्या है? ये एक एनजीओ है यूनाइटेड किंगडम का। और ये जो टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन है, ये एक एनजीओ है, और ये यहाँ पे इंडिया में 2014 से एक कैंपेन चला रहा है। दिस इज द कैंपेन फॉर सेफर कार्स। ठीक है, और इन्होंने इस कैंपेन के अंदर 2014 से लेके अभी तक बहुत सारी कार्स को टेस्ट किया हुआ है, जिसमें मारुति सुजुकी 800 से लेके वोल्क्सवैगन पोलो तक इनने सारी ट्राई की है। बट कोई भी गाड़ी जो है 5 स्टार रेटिंग पे नहीं पहुंची थी, है ना। हाउएवर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द वे फॉरवर्ड विच ऑथर हैज प्रोवाइडेड हियर। और ये वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर आप देखो तो जापान का जो एनसीएपी है, ये कवर करता है इलेक्ट्रिक शॉक्स, परफॉर्मेंस आफ्टर कोलिजन, नेक इंजरी, रियर एंड कोलिजन, अगर रिमाइंडर फॉर सीट बेल्ट, इवेल्युएशन ऑफ पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें जो है ये एनसीएपी में है। और इंडिया अगर एनसीएपी लेके आ रहा है, दीज शुड बी द पैरामीटर्स विच वी शुड एस्पायर फॉर इन नियर फ्यूचर। हाउएवर अभी जो है हम बस 3 पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस एडिटोरियल बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ऑल दो जब भी न्यूज़ आता है, मैं आपको बोलता हूँ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में सीखना है न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। तो कल जो न्यूज़ आया था उसी न्यूज़ पे आज एक्सप्लेन सेक्शन में एडिटोरियल आया। ठीक है, अब जब ये चीज़ें पब्लिक फोरम में आएगी, उसके बाद इस पे क्रिटिसिज्म आएगा। कल या परसों के एडिटोरियल में या लीड एडिटोरियल में इसका क्रिटिसिज्म आएगा।
इसी एनसीएपी का, और वहां से फिर हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स उठाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई पॉइंट आता है तो वो वे फॉरवर्ड का पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कब? कल वाली न्यूज़ में। तो दैट इज व्हाई दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। वरना तो हम खुद से भी पढ़ सकते थे। तो इतना रिसर्च जो यहाँ पे होता है, जो एक टीम करती है रिसर्च आपके लिए इस न्यूज़पेपर का, दैट इज व्हाट मेक्स सेंस फॉर अस। Second news or the next news or the next editorial from the explained section only is about पाकिस्तान आर्मी एक्ट। अब ये पाकिस्तान का आर्मी एक्ट है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आर्मी इज कंसिडर्ड टू बी एंड द पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ डीप स्टेट। ठीक है, और डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट होता है जहां पे मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट जो है, दिस इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसमें बस जो इलेक्शन लड़के आते हैं, या जो इलेक्टोर्स, जो वहाँ के इलेक्टर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो इलेक्शन में वोट डालते हैं, उनके अलावा जो गवर्नमेंट बन जाती है, जो गवर्नमेंट उनने बनाई, उस गवर्नमेंट के अलावा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अलावा, देर आर मल्टीपल अदर फोर्सेस जो इस चीज को कंट्रोल करती है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। दैट इज द होल पॉइंट हियर। अब ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज पे आया है? दैट द रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आया है पाकिस्तान का सेनेट, है ना, और उनने क्या लाया है? एक बिल पास की है जिसका नाम है विच एम्स टू अमेंड द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। और ये क्यों लेके आए हैं ये बिल? बिकॉज दे वांट टू, द problem is between the turf और between the strip between मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट एंड आर्मी, क्योंकि आर्मी हमेशा वहाँ की मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है, जबकि वहाँ का मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट हमेशा आर्मी के अंडर ही चला है। और पिछली बार भी अगर आप देखो तो इमरान खान जब वहां से निकले, ऑफिस से निकाले गए, तो उन्हीं के सपोर्टर्स जो है, उन्होंने May 9 को, 9 मई को एक इंसिडेंट हुआ था वहां पे, जिसमें लोकल पीपल, तहरीक इंसाफ पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, दे स्टार्टेड अटैकिंग आर्मी इंस्टॉलेशंस। और ये जो बैन, ये इंफॉर्मेशन था अबाउट दी आर्मी इंस्टॉलेशंस, अबाउट दी इंस्टॉलेशंस ऑफ आर्मी, ये जो इंफॉर्मेशन था ये किसी आर्मी के बंदे ने ही वहाँ पार्टी के मेंबर्स को दी थी। एंड नाउ जो ये बिल लेके आए हैं, दिस बिल कर्ब्स द फ्रीडम एंड दिस बिल इम्पोजेस अ पनिशमेंट ऑफ 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन दोज पीपल जो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे about the army or about the which are the secrets of the state or which are the secrets of the army। तो अब इस चीज से आपको पता चल सकता है दैट हाउ मच आर द टू लाइक into each other, how much are the two collaborating with each other, that is the mainstream and army, कितना ये ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से। और ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो एक्ट है, ये उन लोगों को भी बैन करता है, उन लोगों पे भी इंफॉर्मेशन को रोकने का या ऑफिशियल सीक्रेट्स को होल्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, चाहे वो लोग अभी करंटली सर्व कर रहे हो, या वो रिटायर हो गए हो, या फिर उनको आर्मी से निकाला गया हो। ठीक है, तो दैट इज what is being highlighted here, that is the Pakistan army has formalized its intervention in the functioning of the country। कि अब जो आर्मी बोल रही है उसी की बेसिस पे ये बिल्स आ रही है। ठीक है, कि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, और कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, कितना यूज होगा कितना नहीं होगा, दैट इज हाउ इट्स फॉर्मलाइजिंग द इंटरवेंशन इन द स्टेट। ठीक है, तो द इम्प्लीकेशन ऑफ द बिल इज दैट द मैनर इन विच द बिल वाज पास्ड वाज डोसाइल, कि गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया और वहां पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और साइलेंस ऑफ क्रिटिसिज्म to the silence criticism of Pakistan's army। This army act clearly aims to silence the criticism of the Pakistan army। आप कभी भी पाकिस्तान आर्मी का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट द मेन एम ऑफ दिस एक्ट इज। ठीक है, एंड इसी चीज के अगेंस्ट में इंडिया स्टैंड्स, दैट वी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी एंड वी डू नॉट लेट एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, whether दैट इज डिफेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ तो आर्मी का इंटरवेंशन है नहीं। सेकंड, हमारे यहाँ देर इज क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर, ऑल्दो द डिविजन ऑफ पावर इज नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन, but yes, the executive is part of legislature only, the executive is drawn out of legislature only, however there is proper system of checks and balances which is maintained in Indian constitution। now the news section में से हमारे पास, we know that prime minister Modi
इज करंटली yesterday वो लोग वो ब्रिक्स समिट अटेंड किए थे. And this BRICS summit, which is the 15th BRICS summit, which was held in Johannesburg, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में उनने समिट किया. एंड ये जो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स दिए गए हैं, दीज फैक्ट्स वे रिवाइज्ड yesterday also. BRICS is an organization of, it's not an organization but a summit. It's just a summit of developing countries. And this BRICS कंट्रीज, जितनी भी इसमें कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. अब बोला जाए कि ये जो डेटा है इसको याद रखना है या नहीं रखना है, यस, इस डेटा को याद रखना है. और इस डेटा को याद रख के हमें क्या करना है, वी कैन यूज दिस डेटा लेटर. हम इस डेटा को अपडेट भी करेंगे, बट यस, वी कैन यूज दिस डेटा इन आवर इंट्रोडक्शन टू एनी क्वेश्चन विच कम्स रेलिवेंट टू ब्रिक्स. तो ये जो समिट होती है ब्रिक्स की, ये सुप्रीम लीडर्स की समिट होती है. चारों ये जो 5 कंट्रीज होती है, इन्हीं की सुप्रीम लीडर्स की समिट होती है. तो ब्रिक्स का जो पहला टर्म था, दैट वाज ब्रिक. दिस ब्रिक वाज गिवन बाय जेम्स ओनील इन 2001. और उनने बोला था दैट द ब्रिक कंट्रीज विल बी द वर्ल्ड्स, will lead the world's economy, will be the world economic leaders by 2028. ठीक है, दैट इज वाई देर इज टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन ब्रिक्स. एंड नाउ द थिंग इज कि ये जो ब्रिक्स है, इस पे हमने 2-4 दिन पहले एक लीड एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, जो लिखा था हैप्पी मून जेकब ने, है ना. हैप्पी मून जेकब ने जो आर्टिकल लिखा था, दैट टॉक्ड अबाउट कि शुड वी लेट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स और नॉट. ठीक है, बिकॉज देर इज अ डायलेमा दैट इफ वी लेट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, then the BRICS may be then the BRICS may be dominated by China. ठीक है, these regional organizations in which China is a part may be ये जो regional organizations है, यहाँ पे इनमें चाइना का प्रभाव बढ़ सकता है. क्यों बढ़ सकता है चाइना का प्रभाव? बिकॉज ऑलरेडी चाइना इज वर्किंग ऑन BRI, CPEC एंड इट्स वर्किंग ऑन चेकबुक डिप्लोमेसी. और उसकी वजह से जितनी कंट्रीज यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड हो जाएंगी ब्रिक्स में, उतना ज़्यादा इंडिया को बार्गेनिंग पावर जो है, इंडिया का जो बार्गेनिंग पावर है, दैट मे बी अंडर चैलेंज. ठीक है, हाउएवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टूड on this thing that yes, India is ready and India supports the expansion of BRICS, and India welcomes the expansion of BRICS grouping together with a consensus based approach. ठीक है, दिस कंसेंसस बेस्ड अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ हमें याद रखनी है. और जब भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जो हमारे पीएम या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं about the organizations or about the summits, about the countries, about the international bilateral partners, ये statements हमारे लिए important हो जाते हैं. So 125 countries participated in Global South Summit, जो हमने अभी रिसेंटली जनवरी में किया था. इंडिया ने उसको लीड किया था ग्लोबल साउथ समिट को. तो उसके बाद अफ्रीकन यूनियन इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस. इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज्ड दैट अफ्रीकन यूनियन शुड बी मेड अ मेंबर ऑफ G20. And now PM Modi has also uh, expressed his confidence in all the BRICS partners that they will support the ideas uh, which India is pushing forward for growth and development and inclusive development at the world level. ठीक है. Oh, so here is one more thing which is highlighted, is that one of the main topics at BRICS at this point of time was फर्स्ट रशिया का इशू. ठीक है, तो रशिया का क्या इशू है कि रशिया मे ट्राई टू यूज ब्रिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू G7 ड्रिवन ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल. तो G7 जो है, ये कैसे, हाउ इज G7 बीइंग ड्रिवन? It's actually west tilted or west dominated. However, Russia may influence and it may create another platform, or it may use BRICS as a platform to start the consensus developing around the west versus east discourse. ठीक है. हाँ, कुछ टर्म्स यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद समझ में ना आए सब बच्चों को जो स्टार्ट कर रहे हैं,
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्कशन है, इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए। और जो नंबर मैंने दिया हुआ है इस पीपीटी के स्टार्टिंग में, इस पीपीटी के पहली स्लाइड पे जो नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट कीजिए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बेटर। ठीक है, रादर देन आप स्टार्ट करो और फिर अलग अलग वीडियोस देखना स्टार्ट करो, और फिर अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग वीडियोस देखना स्टार्ट करो, फिर अपना टाइम वेस्ट करो, वो नहीं करना है। सिंपल, जस्ट गेट इन टच एंड फाइंड द हेल्प, डन। ठीक है, तो दिस इज हाउ ब्रिक्स इज गेटिंग important, एंड इन द backdrop of the expansion of BRICS dialogue at the BRICS is Russia's quest to create an alternative। और यहाँ पे ब्रिक्स में एक और इशू ये भी हाईलाइट हुआ था, दैट इज डी डॉलराइजेशन। हाउएवर इंडिया हैज नॉट स्पोकन अग्रेसिवली फॉर डी डॉलराइजेशन बिकॉज दिस मे hamper India's relations with the West. ठीक है, we do not stand for de-dollarization, but yes, we stand for internationalization of Indian rupee। ये स्टैंड्स क्लियर होने चाहिए, दैट वेदर इंडिया इज सपोर्टिंग यूक्रेन और वेदर इंडिया इज सपोर्टिंग रशिया और इंडिया इज रिमेनिंग न्यूट्रल। ठीक है, ये कौन सा स्टैंड है हमारी कंट्री का, हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या स्टैंड है। डू वी स्टैंड फॉर डी डॉलराइजेशन और डू वी स्टैंड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ये जो स्टैंड्स होते हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स के, फॉरेन पॉलिसी के, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड्स जो होते हैं, ये आपको हमेशा क्लियर होने चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, और ये जो न्यूज है दिस इज फ्रॉम द अपकमिंग और टू बी लाइकली टू अटेंड ईस्ट एशिया समिट। जो ईस्ट एशिया समिट होने वाला है, आसियान मीटिंग्स होने वाली है जकार्ता में, तो दिस इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि पीएम मोदी एंड जी जिनपिंग जो अभी मिले थे ब्रिक्स की समिट पे, हाउएवर दिस वाज एक्सपेक्टेड कि ये लोग वहाँ पे एक मीटिंग करेंगे, है ना, विच इज नॉट येट क्लियर कि हुआ कुछ डेवलपमेंट वैसा या नहीं हुआ है। It's yet to be cleared, but yes, the possibility is that they may meet in future in East Asia Summit or ASEAN meetings in Jakarta। ठीक है, तो the face to face again, if the both leaders decide to attend the East Asia Summit and other meetings of ASEAN, they may face each other, and after the possibility of rescheduling of EAS and ASEAN India Summit, the PM Modi's visit to Jakarta will be seen as an affirmation of India's ties about with the ASEAN and all ASEAN centrality as the basis for India's Indo-Pacific policy। ठीक है, दिस इज अनदर स्टैंड फॉर ऑफ इंडिया अबाउट ASEAN। अब ब्रिक्स का क्या था, ASEAN का क्या है, दोनों स्टैंड्स हमारे क्लियर हो गए, दैट व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक पॉलिसी। प्लस आसियान का मेंबर इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया इज अ मेंबर ऑफ ट्रॉइका, G20 ट्रॉइका। G20 ट्रॉइका क्या होता है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जो पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट चेयरमैनशिप जिसके पास जाने वाली है, ये 3 कंट्रीज होती है। तो नेक्स्ट चेयरमैनशिप कहाँ जाने वाली है, तो ट्रॉइका, इंडोनेशिया भी ट्रॉइका का एक मेंबर है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए दैट इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड इंडिया एंड ASEAN, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज ASEAN फॉर इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो लास्ट जो समिट हुआ था, ठीक है, ASEAN का, ASEAN इंडिया समिट जो लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 2022 में, वहाँ पे पीएम स्किप्ड दैट मीटिंग। हाउएवर जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है, पिछली वाली जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है, दिस मे गिव अ बूस्ट टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ऑलरेडी ASEAN के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था जिसका नाम था RCEP, हमने वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, वी बैकड ऑफ ऑन ज्वाइनिंग दैट दिस agreement। now we have to work on other free trade agreements also in this region। तो in this case ASEAN becomes important, और ASEAN का की मोटो is one vision, one identity and one community। These are the points which are important for prelims। ASEAN Day is celebrated on 8th of the August। ASEAN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में। Recently, the 24th ASEAN India Senior Officials Meeting was hosted in Delhi। लास्ट ईयर हुई थी 2022 में। इंडिया एंड ASEAN 30 years of dialogue were completed in 2022, and in the second ASEAN Digital Ministers ADG ADG Ministers meeting with India, the two sides have finalized an ASEAN Digital Work Plan 2022 फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और ASEAN के मेंबर्स कितने हैं, ये मेंबर्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि G20 के मेंबर्स ऑलरेडी पूछ चुका है।
इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, लाओस एंड कंबोडिया। अगर आपको याद हो तो मेकोंग रिवर के बारे में भी पूछा है यूपीएससी ने, दैट वेयर डज इट फ्लो एंड विच कंट्रीज डज इट फ्लो थ्रू। तो इन कंट्रीज में कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा बायलेटरल डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विद बायलेटरल, किस किस कंट्री के साथ हमारा एफटीए साइन हो चुका है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, एंड दिस न्यूज इज अबाउट G20 ट्रेड टॉक्स। एंड G20 ट्रेड टॉक्स कहाँ हो रही है? देखो G20 का जो एक दिस G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल समिट होती है ना, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल समिट अभी जो है तीसरी समिट होने वाली है राजस्थान की कैपिटल में। ठीक है। एंड पहली समिट जो हुई थी दैट वाज इन मुंबई, और जो दूसरी समिट हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी, और तीसरी समिट जो है अभी होने वाली है कहाँ पे? राजस्थान में। एंड नाउ व्हाट आर द की बेसिस और व्हाट आर द 5 प्रायोरिटी एरियाज जहाँ पे इंडिया काम कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G20 इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट इज ट्रेड for growth and prosperity, building resilience through global value chains, and integrating micro, small, and medium enterprises in global trade, improving trade logistics, and upholding and supporting the reforms of World Trade Organization। अब ये जो पॉइंट्स है पांच के पांच, इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दो इश्यूज जो हमने हाईलाइट किए थे, वन वाज अबाउट द डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, एंड सेकंड वाज इंपॉर्टेंस ऑफ द रेजिलिएंट एंड टाइमली ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ये दो चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, और यही दो चीज़ें हैं जो हाईलाइट की है मिस्टर मोदी ने एट ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। और इन दो चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, एंड दीज आर द इश्यूज विच इंडिया हैज़ टू डेवलप अ कंसेंसस ऑन एट G20 प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आज का जो न्यूज़पेपर था, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी, और इकोनॉमिक्स एंड जिसको हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी। ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझ के आपको थोड़ा सा सही से ध्यान में रख के पढ़ना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। और ये जो एडिटोरियल है, एज यू नो कि यूपीएससी, ये जो हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है, तो इसमें हम ज़रूरी है कि हम एक पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं और हम एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। और यूपीएससी ने 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट एरियल मेटाजिनोमिक्स। ठीक है। जब भी मैं यूपीएससी की एनालिसिस क्लासेस लेता हूँ, एनालिसिस क्लासेस मींस पीवाईक्यूज का एनालिसिस जब हम करते हैं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस में वी डू दिस एनालिसिस फॉर व्हाट? फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक behind UPSC, and this was a term that is aerial metagenomics जो पूछी थी यूपीएससी ने 2023 में, एंड दिस टू इज समथिंग जो करंट अफेयर्स में थी। ठीक है। 2022 का करंट अफेयर्स था ये, और अभी 2023 में ये न्यूज़ जो है, ये जो न्यूज़ है पूछा गया था। एंड व्हाट इज एरियल मेटाजेनोमिक्स? दिस इज अ टर्म विच रेफर्स टू कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिtat एट वन गो। ठीक है। अब अगर इस टर्म को समझना है तो एरियल मीन्स जो हवा में होगा, मेटा मीन्स जो बहुत ज्यादा होगा, दो चीजें। जिनोमिक्स मीन्स जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा। डन। अब अगर इसी टर्म को यहाँ पे समझे तो वन इज द एयरबॉर्न डिवाइसेस एंड अनदर इज ड्रोन्स। ये दोनों जो आपके ऑप्शंस है, दोनों सिमिलर ऑप्शंस है, तो दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है, दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एंड ब्लड सैंपल्स आप कलेक्ट करो या फिर आप कुछ और सैंपल्स कलेक्ट करो, एनिमल्स का, लैंड एंड सरफेस वाटर बॉडीज का सैंपल्स कलेक्ट करो, इट्स ऑल टुगेदर सेम फॉर जेनोमिक्स ओनली, है ना। तो दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है, दोनों आंसर नहीं हो सकते। नाउ बचा आपके पास ए और बी था, और बी आपका आंसर क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दी जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ ए हैबिटाट, उनका जेनेटिक मेकअप अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी होगा, अंडरस्टैंड होगा या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसके बाद? रिसर्च के बाद, है ना। जबकि अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के बाद होती है। मेटाजेनोमिक्स हम कैसे करते हैं? मेटाजेनोमिक्स इज एक्चुअली द डीएनए सैम्पलिंग, दिस इज अ प्रोसेस।
ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग दी डीएनए सैंपल्स एंड देन प्रोसेसिंग देम, एंड उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई दी logic behind UPSC MCQs is important. So this editorial which came in explained section is about health only. और अपने सेशंस में भी ये भी बोलता हूँ कि अगर आप यूपीएससी के सारे पेपर्स देखो, हर साल के पेपर्स, तो आपको जरूरी जरूरी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हेल्थ सेक्शन और फ्रॉम डिजीज सेक्शन। एक क्वेश्चन आपको जरूरी मिलेगा, तो इसीलिए ये वाला एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है। अब दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट, और ये एडिटोरियल आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और मेंस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस editorial talks about health, and health is something which is relevant to governance, social justice, public welfare। ठीक है, एंड दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, हेल्थ। ठीक है, अब इस हेल्थ को समझना और वन हेल्थ को समझना, व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। वन हेल्थ इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स दैट रिकॉग्नाइज इंटरकनेक्शन बिटवीन द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर शेयर्ड एनवायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी द हेल्थ perspective, we will study the health dimensions of health in every other perspective कि इंटरकनेक्शन कितना है हेल्थ का ह्यूमंस के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ। दिस वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय हिपोक्रेट्स इन हिज राइटिंग्स। और इस चीज को सपोर्ट किया था किसने, रूडोल्फ वर्को ने, जिसने बोला था दैट एनिमल्स एंड ह्यूमंस, द relationship or the dividing line between animals and human medicines is actually not there. We have created this dividing line and it should not be there and neither is it there। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स का जो हेल्थ सिस्टम है, का जो नेचर नेचुरल क्योर सिस्टम है, कि कोई डिजीज हो गया और उसके बाद उस डिजीज का क्योर, ये सब जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, विच वॉज सपोर्टेड बाय द ऑथर्स एंड द physicians also and the pathologist whose name is Rudolf Virchow। अब ये जो वन हेल्थ अप्रोच है, इसमें स्पेशल क्या है ऐसा, द स्पेशलिटी इज दैट हमने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया। ठीक है, और हमने एनवायरनमेंट को खराब किया तो नाउ देर आर सम डिजीजेस known as zoonosis। what is the disease, this disease is shared between animals and humans, and how are these diseases affecting us, as we have seen that 60% of the emerging diseases that can infect humans are zoonotic in nature। 60% डिजीज जो है दे आर जूनोटिक, चाहे आप बर्ड फ्लू लो, इबोला लो, रेबीज लो, जापानीज एंसेफेलाइटिस लो, हर एक डिजीज जो है जूनोटिक है इन नेचर। तो अगर हमारा डिजीज का ओरिजिन ही एनिमल प्लस ह्यूमन है या एनिमल प्लांट प्लस ह्यूमन है, देन वाई शुडंट बी द क्योर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्योर भी दोनों का क्यों नहीं हो सकता है एक जैसा, अगर डिजीज दोनों सेम ही यूज कर रहे हैं तो दीज एनिमल्स आर जस्ट एक्टिंग एज दी vectors, or these animals are just acting as the carriers of the disease, है ना। and in addition to this we have also seen an antimicrobial resistance। antimicrobial resistance क्या है, that a microbe, है ना, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, अब उस पे कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, और वो माइक्रोब, वो वायरल डिजीज जब आपको होती है तो उसके बाद आप पे कोई दवा असर नहीं करती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन टू मच ऑफ मेडिसिन। प्लस देर इज ऑल्सो अदर इशू ऑफ फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देर इज इशू ऑफ कंट्रोलिंग द वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगी, ऐसी डिजीज को कंट्रोल करना इज ऑल्सो वन मोर प्रॉब्लम। देयर फोर अब हमें अगर कुछ करना है तो वी नीड अ वन हेल्थ स्ट्रैटेजी। तो ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक, दैट यू नीड अ वन हेल्थ स्ट्रैटेजी। दिस इज आर इंट्रोडक्शन, दिस इज अ नीड of one health strategy, and then what is this need of one health strategy and what does this one health strategy stand for। अब इस वन हेल्थ स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज करेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट यूनिट्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
फिशरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब को एक कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में डाल के इनको ये समझाना है दैट हाउ कैन वी कंट्रोल डिजीज, coordination over disease control. ठीक है. Then we will also see that cost of managing a pandemic with a non-health approach will be around $30 billion, and cost of managing a pandemic with one health approach will be just $10 billion. ठीक है. तो इस चीज को समझना है दैट अगर हम वन हेल्थ अप्रोच लेके चलते हैं तो जो हमारा कॉस्ट है, जो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव है इस चीज का, दैट टू विल डिक्रीज. एंड इन सच सिनारियो अब हमने क्या किया है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो हमने अभी तक लिए हैं. तो कोविड 19 को के बाद व्हाट वी हैव डन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस. ये कोविड से पहले के स्टेप्स है. तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस इन 2006 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्थ. अब ये कमेटी बनाने के बाद व्हाट वी डिड वाज, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया. This Department of Biotechnology launched India's first consortium on One Health in October 2021. One Health के चलते चलते what we did was, we also in June 2022, the Department of Animal Husbandry and Dairy Farming has also initiated this thing, a partnership with Bill and Melinda Gates Foundation, so that they launched a pilot project in Karnataka and Uttarakhand which is working on One Health doctrine. ठीक है. और वन हेल्थ मिशन, that is the national one health mission, is also currently being prepared under the guidance of principal scientific advisor of India. तो अब अगर आप इस चीज को समझ गए हो, that what are the steps which India has taken already in one health approach. अब वन हेल्थ अप्रोच के स्टेप्स तो हम ले लेंगे, हम अप्रोच भी लेके आएंगे, बट हमारा ट्रांजिशन कैसे होगा, जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ से उठ के हम वन हेल्थ अप्रोच पे कैसे जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज कोलैबोरेशन, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन, एंड फोर्थ इज इंटीग्रेशन. अब क्या क्या करेंगे इसमें. पहला करेंगे कम्युनिकेशन, दैट इज कीपिंग इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टेक होल्डर्स. सेकेंड इज कोलैबोरेशन, दिस विल बी योर वे फॉरवर्ड. हाँ, इसको याद रखना है, क्वेश्चन का ही वे फॉरवर्ड होगा. सेकंड इज कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन इज व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्रांसलेट आइडियाज इनटू शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस. और शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस में कोलैबोरेशन होगा किसका, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का, और पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च का. अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, वी विल एसेस लोअरिंग डिजीज रिस्क, सर्वेलेंस, बिल्डिंग कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड पब्लिक आउटरीच. और इसी में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल देता है दैट कोलैबोरेशन में DHD हैज सेट अप पायलट प्रोजेक्ट विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. कोऑर्डिनेशन में हम क्या करेंगे, वी विल आल्सो सेट अप अ नेशनल और सब नेशनल एजेंसी, और उसके नीचे का फ्रेमवर्क बनाएंगे जहाँ पे कमिटीज विल बी सेट अप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल. एंड इन सच केस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नेशनल वन हेल्थ मिशन. और लास्ट में व्हाट वी विल डू इज वी विल डू integration of all of these steps in which one health is actually, जैसा मैंने पहले बोला, that this one health is मल्टी सेक्टोरल एंड इट वर्क्स ऑन इंटरसेक्टोरल बेसिस. और इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा दैट एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी, एनवायरनमेंट, हर एक चीज आपस में लिंक्ड है. और यही इंटरसेक्टोरल पर्सपेक्टिव जो इस मल्टी दिस वन हेल्थ अप्रोच का है, इसको लेके चलेंगे, और इसी को लेके चल के हमें हॉरिजेंटलाइज करना पड़ेगा अपने गोल्स को और अपने मैकेनिज्म को. ठीक है. तो दिस इज योर वे फॉरवर्ड. And at the last, what will be your conclusion on this One Health approach is this: integrated science-based environment should be created, जिसमें there should be an approach in which there will be multidisciplinary approach and the collaborative and cooperative approach will be there. ठीक है. तो that's it and that's all for today's discussion. और इस वन हेल्थ अप्रोच पे जो मैंने आंसर बताया यहाँ पे, ठीक है, दिस एडिटोरियल इज नॉट एडिटोरियल, दिस इज एन आंसर फॉर योर क्वेश्चन. ठीक है. तो यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट द वन हेल्थ अप्रोच can act as panacea for
India's out of pocket expenditure driven poverty. ठीक है, justify your answer. ठीक है, तो दिस विल बी योर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखो 9031036712, इस नंबर पे आप फॉरवर्ड करो. आई विल चेक योर आंसर एंड आई विल गिव यू अ पॉजिटिव फीडबैक. All the best from Perfection IES. And if you have any other issues, you can contact us. You can connect to us. And if you want mentorship for UPSC and BPSC, you can connect to us. And there are free classes also going on for 69th BPSC. तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. एंड आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑफलाइन सेंटर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फॉर UPSC एंड BPSC. थैंक यू. जय भारत, जय हिंद.